بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المضاف والمضاف الیہ۔ المضاف والمضاف الیہ سے پہلے آپ ایک اصطلاح پڑھ لیجئے، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمیں کبھی کسی کی کوئی ملکیت ظاہر کرنی ہو، پوسیشن ظاہر کرنی ہو، جس کی مثال اردو میں آپ کے سامنے یہ ہے، حامد کی کتاب۔ حامد کی کتاب، یہاں پر ملکیت ظاہر ہو رہی ہے۔ فی الحال میں آپ کو ہر جگہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں بالکل بنیادی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اونچی لیول پر، ہائی لیول پر ابھی نہیں لے جا رہا ہوں۔ حامد کی کتاب، تو یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کتاب کا مالک حامد ہے، تو گویا ملکیت ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ کس لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے؟ یہ کی، حامد کی کتاب۔ یہاں اس کی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب حامد کی ہے۔ اسی طرح حامد کا قلم، یہاں پتہ چل رہا ہے کہ قلم حامد کا ہے، تو قلم کا مالک حامد ہے، تو ملکیت ظاہر ہو رہی ہے، پوسیشن ظاہر ہو رہی ہے، ایک نسبت لگ رہی ہے، قلم کی نسبت حامد کے ساتھ۔ اگر ہم حامد کا اس کو کاٹ دیں، خالی قلم کو رکھیں، تو یہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ قلم کس کا ہے، لیکن جب ہم نے یہ حامد کا قلم، یہ کا بیچ میں لگایا، تو اس قلم کی اب نسبت، ایک رشتہ، ایک تعلق جڑ گیا اس حامد کے ساتھ کہ یہ قلم اب حامد کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب حامد کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور اس نسبت، اس اضافت سے پہلے وہ چیز عام ہوتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم نے کوئی اس کے ساتھ لگا دیا اور بیچ میں کی، کے، کا وغیرہ لگا دیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اب اس کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی اس کے اندر خصوصیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز اب اس کے لیے خاص ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور اس کا رشتہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا مالک وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو چیز ہمیں استعمال ہوتی ہے، اس کی اردو کی شکل یہ ہے۔ جیسے حامد کی کتاب، حامد کا قلم۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہی چیز ہم اگر عربی میں بنائیں، اچھا ایک چیز اور سن لیجئے، حامد کی کتاب، جس چیز کی ملکیت دوسرے کی طرف ہو رہی ہو، یعنی جو چیز ہو، اس کو کہتے ہیں مضاف۔ مضاف کا مطلب ہے اس کی اضافت ہو رہی ہے، اس کا تعلق جڑ رہا ہے، اس کا رشتہ جڑ رہا ہے، اور یہ کی حرف اضافت ہوتا ہے۔ حرف اضافت یعنی اس کی وجہ سے اس کتاب کا رشتہ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کتاب کا تعلق اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کتاب کی اضافت اس کی طرف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کتاب کی نسبت حامد کی طرف ہو رہی ہے۔ جس چیز کی طرف نسبت ہو رہی ہے، جس چیز کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف الیہ، مضاف جس چیز کی نسبت ہو رہی ہو اور جس کی طرف نسبت ہم کریں گے کہ یہ قلم، یہ کتاب فلاں کی ہے، تو وہ فلاں مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ تو مرکب اضافی کیا ہے؟ جہاں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہو رہی ہو۔ اس جملے میں یہ جو نسبت ہے، یہ جو اضافت ہے، اور یہ جو پورا جملہ بن رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے مرکب اضافی۔ یہ مرکب ناقص ہے، پورا جملہ نہیں ہے، لیکن ابھی فی الحال ان پنگوں میں آپ نہیں پڑھیں۔ حامد کی کتاب مرکب
इजाफी है, यानी इसके अंदर इजाफत हो रही है, इसके अंदर निस्बत है, इसके अंदर मिल्कियत जाहिर हो रही है, इसके अंदर पोसेशन है। तो ये तो उर्दू में था। अगर इसी माना को, इसी मफहूम को हमने अरबी में जाहिर करना हो तो उसको हम किस तरह जाहिर करेंगे? मैं आपको उस मिसाल को वहीं रख कर यहाँ आपको मिसाल देता हूँ। हामिद की किताब, हामिद की किताब। सबसे पहली चीज जब आप अरबी बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उर्दू में मुजाफ बाद में होता है, अरबी में ये मुजाफ पहले चला जाएगा। उर्दू में मुजाफ इलैह पहले होता है, अरबी में ये मुजाफ इलैह बाद में आएगा। अब देखिए कैसे। किताब की अरबी लिखते हैं हम, किताब, और फिर हामिद की अरबी लिखते हैं, किताब और हामिद। ये जो की है, की, का, के, जो भी बीच में दाखिल हो रहा है, इसकी अरबी नहीं होती। इसकी अरबी नहीं, इसके लिए एक पैटर्न है, एक तरीका है। वो क्या है वो अभी समझाऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि इसकी अरबी नहीं बनेगी। किताबु हामिदिन, किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। जब आप तर्जमा करोगे उर्दू में तो यहाँ से करना है, हामिद की किताब। हामिद, उसके बाद की का के लगाना है, फिर किताब लगाना है, जैसी है हामिद की किताब। अगर इसी की अरबी ना, किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। तो ये है मुरक्कब इजाफी अरबी में। अब अरबी में ये किताब जो था मुजाफ है, तो मुजाफ, हामिदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह। देखिए आप उर्दू में मुजाफ इलैह पहले है, अरबी में मुजाफ इलैह बाद में है। उर्दू में मुजाफ बाद में है, अरबी में मुजाफ पहले है। ये तरीका है। अभी आपको मैं पूरा समझाऊंगा कैसे बनता है, कैसे बनाना है। लेकिन इतना आप जहन में रखिए कि मिल्कियत को जाहिर करने के लिए, पोसेशन को जाहिर करने के लिए ये वाला तरीका है। अब ये बनता कैसे है, क्या फार्मूले हैं इसके, वो अभी आपके सामने आएंगे। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है किताबुन और दूसरा लफ्ज़ है हामिदुन, हामिदुन। किताबुन का तर्जमा है कोई किताब, एक किताब। हामिदुन का तर्जमा हामिद नाम। अब हमें इसमें मिल्कियत जाहिर करने के लिए ये बताना है कि ये किताब का ताल्लुक़ हमने हामिद के साथ जोड़ना है कि ये किताब हामिद की है। तो वो ऐसे नहीं आ जाएगा डायरेक्ट आप किताबुन लिख दो, हामिदुन लिख दो तो हो गया हामिद की किताब, नहीं। उसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? आपने पहले मुजाफ लिखना है। मुजाफ वो होता है जिसकी इजाफत दूसरे की तरफ की जाए, और मुजाफ इलैह वो होता है जिसकी तरफ किसी चीज़ की इजाफत की जाए। देखो, किताब लिखा आपने और हामिद लिखा आपने। अब आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल वे से। आपको ये जो दो पेश हैं, दो पेश ख़त्म करनी है, एक पेश रखनी। ये दो पेश हैं, ये ख़त्म करनी है, दो ज़ेर लानी, बस। पहले वाले पर एक पेश। आपने पढ़ा पीछे कि दो पेश तब आती हैं जब अलिफ लाम नहीं होता है, जब अलिफ लाम होता है तो फिर एक पेश आती है। लेकिन यहाँ थोड़ा कायदा पढ़िए कि यहाँ एक पेश है और पीछे अलिफ लाम भी नहीं है। जब अलिफ लाम भी ना हो और एक पेश आए तो समझ लेना कि ये मुजाफ है। मुजाफ के लिए कायदा ये है, इस पर एक पेश आएगी और इसके बाद वाले पर ज़ेर आएगी। जैसे हर्फ़ जर अपने बाद वाले को ज़ेर देता है, इसी तरह ये मुजाफ भी अपने बाद वाले को ज़ेर देता है। यहाँ हमेशा ज़ेर ही आएगा। मुजाफ इलैह का कायदा ही यही है कि ज़ेर आएगी। अलबत्ता ज़ेर की दो सूरतें हैं, या तो एक ज़ेर होगी या दो ज़ेरें होंगी। एक ज़ेर कहाँ आएगी? जहाँ अलिफ लाम होगा, और दो ज़ेरें कहाँ आएंगी? जहाँ अलिफ लाम नहीं होगा। अब देखिए, किताबु हामिदिन, हमने इन दो लफ्ज़ों की हरकत बदली।
किताब पर एक पेश दिया, हामिद पर 2 ज़ेर दी। तो इसी स्ट्रक्चर में, इसी हैयत में जुमले को बनाने में क्या तर्जमा निकलेगा? हामिद की किताब, हामिद की किताब। ये की का जो तर्जमा है, कोई पूछे ये कहाँ से लाया? ये इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, इसके लिए खाली ये जुमले की साख्त को बदलना है, जुमले के पैटर्न को बदलना है। यानी 2 पेश नहीं रखने, 1 पेश रखनी है, 2 पेश नहीं रखनी, 2 ज़ेरें रखनी है, पहले पर पेश, दूसरे पर 2 ज़ेरें या 1 ज़ेर। यही तर्जमा निकालता है की का, के का। इसके लिए कोई अलग से लफ्ज़ नहीं आएगा। अब ये जो हामिद की किताब हमने तर्जमा किया, उर्दू में तर्जमा करते वक्त आप पहले इसका तर्जमा करेंगे, फिर इसका करेंगे। अब इसको अरबी में क्या कहते हैं? मुज़ाफ, मुज़ाफ। इसको क्या कहते हैं? मुज़ाफ इलैह। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मुज़ाफ वो चीज़ है जिसकी निस्बत मुज़ाफ इलैह की तरफ की जा रही है। गोया अब इसकी मिल्कियत जाहिर करने के लिए कि ये किताब हामिद की है, हामिद इसका मालिक है और ये किताब इसकी ममलूक है, तो ये मालिक जो है उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं और जो इसकी मिल्कियत में चीज़ है उसको मुज़ाफ कहते हैं। यानी इसकी इजाफत की गई है इसकी तरफ। इसकी इजाफत का मतलब निस्बत, निस्बत का मतलब रिश्ता, रिश्ते का मतलब ताल्लुक। तो ताल्लुक जोड़ा गया है, रिश्ता जोड़ा गया है, निस्बत की गई है, इजाफत की गई है इस चीज़ की, इसकी तरफ कि ये किताब किसी और की नहीं, ये किताब हामिद की है। तो इस तर्ज का जो जुमला होगा, जो मुरक्कब होगा, उसको मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। अब ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मिलकर इन दोनों को हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी। जैसे आपने पीछे मुरक्कब इशारी पढ़ा था, इसमें इशारा और मुशार अलैह को मिलाकर, तो ये मुरक्कब इजाफी है। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह से मिलकर जो मुरक्कब बनता है उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। और मुरक्कब कहते हैं 2 लफ्ज़ों से मिला हुआ कोई भी जो है कोई भी 2 लफ्ज़ हम जब जोड़ लेंगे तो वो मुरक्कब बन जाएगा, चाहे उसमें 3 हो, 4 हो, 10 हो, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। फिर जब ये जुड़ जाएगा मुरक्कब तो उसमें फिर किसमें निकलती हैं, वो आगे इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने आएंगे। तो मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जिसमें एक कलमे की निस्बत दूसरे कलमे की जानिब की जाए। जैसे किताबु हामिदिन, हामिद की किताब, इस जुमले में किताब की निस्बत हामिद की तरफ की गई है, इसलिए किताब को मुज़ाफ और हामिद को मुज़ाफ इलैह कहेंगे। और मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह को जो मिलाकर मुरक्कब इजाफी कहते हैं। और जब आप तर्जमा करेंगे तो तर्जमा करते वक्त पहले इसका होगा फिर इसका होगा। किताब हामिदिन, हामिद की किताब, की का तर्जमा कहाँ से निकाला उसके लिए आप याद रखें ये वाला पैटर्न कि पहले पर पेश हो और दूसरे पर 2 ज़ेरें हो या 1 ज़ेर हो, तो इससे की का, के का तर्जमा निकलेगा। उर्दू में मुज़ाफ इलैह पहले आता है, जैसे हामिद की किताब, तो हामिद पहले आएगा और ये बाद में आएगा। उर्दू में मुज़ाफ इलैह पहले और मुज़ाफ बाद में आता है, जबकि अरबी में इसका बरअक्स है, यानी मुज़ाफ पहले और मुज़ाफ इलैह बाद में आता है। इसलिए तर्जमा करते हुए जुमले की तरतीब क्या होती है, उलट जाती है। कैसे उलट जाती है वो आपने देख भी लिया, एक बार और देख लें। जब आप इसका तर्जमा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा उलट। ये मुज़ाफ इलैह था, ये पहले चला जाएगा हामिद, बीच में की लगाना है, किताब, हामिद की किताब। तो देखिए उर्दू में तर्जमा उल्टा हो गया। जहां पर भी आपको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह आएगा उसका तर्जमा उर्दू में उल्टा हो जाएगा और उसमें की का के। अच्छा, उर्दू में जहां पर भी आपको का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे ये लफ्ज़ आ जाएंगे, तो वो जहाँ पर ये लफ्ज़ आएंगे तो ये मुरक्कब इजाफी की निशानियाँ हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर हामिद की किताब, हामिद के कपड़े और हामिद का कलम, तो का की के हो गए। ना वाली अपना कलम, अपनी किताब, अपने कपड़े, जहाँ अपना, अपने, अपनी आएगा।
میرا قلم، میری کتاب، میرے کپڑے، تو راری رے، نانی نے، کاکی کے، جہاں پر یہ 9 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اردو میں تو سمجھ جائیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ تفصیل ان کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گی کہ راری رے کہاں آئے گا، نانی نے کہاں آئے گا، کاکی کے کہاں آئے گا، وہ تفصیل آہستہ آہستہ آتی جائے گی۔ فی الحال آپ ذہن میں یہ چیزیں رکھیں۔ جب ہم دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اردو سے عربی بنائیں گے تو اردو کی ان کاکی کے، نانی نے، راری رے، ان کا ترجمہ عربی میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے جو الفاظ کی ترتیب بنائی گئی ہے، پہلے پر پیش اور دوسرے پر 2 زیریں، تو یہی ظاہر کرتا ہے کاکی کے، نانی نے، راری رے کا ترجمہ۔ تو اردو سے جب آپ عربی بنائیں گے تو سب سے پہلے کاکی کے یہ چیزیں جو ہیں یہ بیچ میں سے نکل جائیں گی۔ پھر آپ نے ان 2 لفظوں کی عربی ڈھونڈنی ہے، جیسے یہاں ہمیں معلوم ہے کہ حامد اور کتاب، لیکن اگر کوئی ایسا لفظ جس کی عربی معلوم نہیں تو عربی معلوم کرو، اور معلوم کرنے کے بعد مضاف کو پہلے رکھو اور مضاف الیہ کو بعد میں رکھو۔ جیسے اچھا اب کچھ قاعدے ہیں، قاعدے کیا ہیں؟ وہ قاعدے آپ ذرا سن لیجئے، وہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں۔ مرکب اضافی میں آپ نے پڑھا کتاب حامد، یہ تھا آپ کا مضاف اور یہ تھا آپ کا مضاف، وہ آپ کا مضاف ہے اور یہ آپ کا مضاف ہے۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مضاف ہے، یہ والا پہلا مضاف، اس پر الف لام نہیں آئے گا، الف لام نہیں آئے گا۔ نمبر 2، اس پر تنوین نہیں آئے گی، تنوین نہیں آئے گی۔ تنوین کا مطلب ہے 2 زبر 2 زیر، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آئیں گے، الف لام نہیں آئے گا۔ قاعدہ تو یہی تھا کہ اگر الف لام نہیں ہے تو 2 پیش 2 زبر 2 زیر آنے چاہیے، اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں ہے تو پھر الف لام آنا چاہیے، تو یہی قاعدہ بنتا ہے، کیونکہ ایک پیش الف لام کے ساتھ آتی۔ لیکن یہاں آ کر اب جملے کی ساخت حیت بدل چکی ہے، اب اس پر الف لام بھی نہیں آئے گا اور یہاں 2 پیش بھی نہیں آئیں گے۔ الف لام نہیں آیا تھا تو 2 پیش آنی چاہیے تھی، ایک پیش آیا تو الف لام آنا چاہیے تھا، لیکن یہ بالکل الٹا ہے کہ بابا الف لام بھی نہیں لاؤں گا ساتھ میں اور 2 پیشیں بھی نہیں لاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تیسری صورت بنانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مضاف کی صورت ہے۔ تو مضاف کی صورت میں آپ کو مضاف کے علاوہ آپ کو کوئی لفظ ایسا نہیں ملے گا کتابو، نہ، اگر ایسا ہوگا پھر کتابن ہوگا، اور اگر پیش ہوگا تو پھر پیچھے الف لام ہوگا۔ یہ صورت مضاف میں آپ کو نظر آئے گی جہاں پر آپ کو الف لام بھی نہیں ہے اور 2 پیش بھی نہیں ہے۔ تو مضاف کے قاعدے آپ نے پڑھ لیے، الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہی آئے گی، مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہی آئے گی۔ اس پر الف لام بھی آ سکتا ہے اور الف لام نہیں بھی آ سکتا۔ الف لام نہیں آئے گا تو 2 زیریں، الف لام آئے گا تو 1 زیر۔ ابھی ہم مثال کے ذریعے سے بھی اس کو ظاہر کریں گے۔ تو قاعدہ کیا یاد رہا آپ کو کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین آ سکتی ہیں۔ اگر مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے تو تنوین آئے گی، اور اگر مضاف الیہ پر الف لام ہے تو تنوین نہیں آئے گی۔ اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ آپ کے پاس ایک لفظ ہے کتاب رجولن، کتاب رجولن، آدمی کی کتاب، آدمی کی کتاب۔ اب دیکھیے یہاں کتاب آپ پڑھ چکے ہیں مضاف کا قاعدہ کہ اس پر الف لام بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں ہوگی، ختم کہانی۔ رجولن یہ مضاف الیہ جو ہے اس پر ہمیشہ زیر ہی ہوگی، چاہے 1 زیر ہو چاہے 2 زیر ہوں۔ تو یہاں پر الف لام نہیں ہے تو 2 زیریں آ گئی۔ یہی والا سٹرکچر آپ ایسے لے لیجئے،
किताबु, इस पर रजुल पर अलिफ लाम लगा दो, क्योंकि अलिफ लाम की वजह से अब दो जेरें नहीं आएंगी तो एक जेर आ गई। किताबुर रजुली, किताबुर रजुली, तो यहाँ पर देखिए ये तो एक ही पेज पर रहेगा, एक पेज पर रहेगा, और ये किताबुर रजुली, यहाँ एक जेर आ गई, यहाँ दो जेरें। कायदा क्या है, कायदा इसका नहीं है, वो अलिफ लाम का है कि अगर अलिफ लाम नहीं है तो दो जेरें, अलिफ लाम है तो एक जेर। वो कायदा सिर्फ यहाँ टूटता है कि अलिफ लाम नहीं है तो दो पेश आएंगे ना, और अलिफ लाम नहीं है तब भी एक ही पेश आएगा। तो ये आपके सामने मिसालें आ गई हैं किसकी, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की। इसी तरह आपके पास कुछ लफ्ज़ आते हैं, देखिए अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही, यहाँ पर भी आपको जब आ जाए, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अब्दुल्ला, अब्दुल्लाहु, तो अगर मालूम हो कि ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है तो पहले पर आप पढ़ेंगे पेश, दूसरे पर पढ़ेंगे ज़ेर। अब्दुल्लाही, तर्जमा आप इसका, ये तो है नाम अब्दुल्ला, लेकिन तर्जमा अगर आप करेंगे तो होगा अल्लाह, बीच में का लगाना है, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा। इसी तरह दूसरा नाम आता है अब्दुर्रहमानी, अब्दुर्रहमानी, देखो अब्दुर्रहमानी, पहले पर अलिफ लाम भी नहीं है और दो पेश में नहीं, एक पेश आ रहा है, और दूसरे पर जेर आ रही है एक, क्यों, क्योंकि यहाँ अलिफ लाम है। अगर यहाँ अलिफ लाम ना होता तो रहमा दो जेरें भी आ सकती थी। इसी तरह अब्दुस्समदी, अब्दुस्समदी, तो ये भी नाम है अब्दुस्समद, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहीम या अब्दुल हमीद, अब्दुल मजीद, तो ये सारे के सारे नाम है। अब्द का मतलब होता है बंदा, अल्लाह का बंदा, रहमान का बंदा, समद का बंदा, समद मतलब बेनियाज, अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद, तो ये सारे अल्लाह के सिफाती नाम हैं जिनके साथ हम अपने नामों को जोड़ते हैं। यहाँ तक तो आपके सामने आसान आसान किस्म की मैंने मिसालें पेश कर दी हैं। अब दूसरे सबक में हम थोड़ा सा इसी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को आगे लेकर चलेंगे, थोड़ी सी और इसमें तफसील आएगी। तो आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि अगर किसी चीज़ की मिल्कियत ज़ाहिर करना हो, का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, तो इसको मरकब इजाफ़ी कहते हैं। इसमें पहले वाला लफ्ज़ मुज़ाफ़ होता है, दूसरा वाला मुज़ाफ़ इलैह होता है, और मुज़ाफ़ मिल्कियत में होता है मुज़ाफ़ इलैह की, और मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, और मुज़ाफ़ इलैह पर ज़ेर आती है, चाहे एक ज़ेर हो चाहे दो ज़ेरें हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।